Hello everyone, thank you for visiting my channel. I am Poonam Arora, the author of Game of Recipes. We are already into a great season 3 of Game of Recipes and we saw some nice home chefs participating with their wonderful recipes. I would like to thank my viewers and also to every single person who voted for our wonderful home chefs. I will announce our second semi-finalist of season 3 in just a while. Here is the schedule for season 3, and from this qualifying episode there will be just one more qualifying episode next week. From each of this qualifying episode, one home chef will be selected to participate in the semi-finals, which will be aired on 4th June 2021. And from this semi-final episode, 3 of the home chefs will be selected to participate in the grand finale episode, which will be aired on Friday 18 June 2021. Once again, you're always welcome to connect with me for collaboration and business support through Game of Recipes. Our unique concept continues to bring people to participate, and you now have a chance to be a part of Master Home Chef competition in season 3 of Game of Recipes, as we are still accepting entries. So hurry up and get cooking and share your videos with me. YouTube has been very supportive to Game of Recipes, and they have provided us with a poll option. So once you have watched the episode, you can now vote for your favorite recipe and home chef in the community tab of our YouTube channel, exactly as in this picture. The vote can be given until Thursday noon, and a minimum of total 200 votes in this episode among all participants are required to choose a semi-finalist via the voting system. So my friends, share and share more. To judge a recipe, you too should follow the EAT method, where EAT stands for execution of recipe, from ingredients to final dish, appearance of the dish including video quality, and finally the taste and total performance of the home chef and their recipe. While everyone would love to taste the recipe of our every home chef, but it is not possible in this virtual world, so just like us, you too can prepare the exact recipe in your kitchen to know the taste. Everyone can participate in Game of Recipes. So just cook, shoot and send the video. Please vote for the best recipe and follow us on our other platforms too to get the latest updates. Game of Recipe congratulates Rajshri, as she is our second semi-finalist of our season 3 of Game of Recipes Master Home Chef competition. Rajshri won by receiving 41% votes, and here's what she has to say. Hello, Namaste. My name is Rajshri Sharma. Thank you viewers for your lovely comments and vote, which helped me to reach in semi-final. Without your support, it wasn't possible at all. I would also like to thank Ms. Poonam Arora for giving me this unique platform to showcase my cooking skill. Guys, you also participate and show your cooking skill through this channel, Game of Recipes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you. See you. Bye. Please encourage our wonderful home chefs by watching and sharing our episodes, letting us know in comments about what make their videos special. Click the subscribe button and also the bell icon to receive timely notification. Voting, liking, commenting, sharing our episodes and recipe will give the extra motivation to our super home chef. Let's get started on this wonderful season 3 of Game of Recipes Master Home Chef, the third qualifying round. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका डागरिया। मैं उदयपुर से हूँ। मैं एक होम शेफ़ हूँ और कुकिंग मेरा पैशन है। आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता और पनीर कुलचे। आज हम मलाई कोफ्ते को बिना तले बनाएंगे, बिल्कुल हेल्दी वर्जन में बनाने वाले हैं हम। तो आज हम उसमें ब्रेड क्रम्स, मैदा भी यूज़ नहीं करेंगे, हम बाइंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ किए बिना आज हम मलाई कोफ्ते बनाने वाले। फिर भी हमारे मलाई कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे। देखिए आप किस तरह से सॉफ्ट बने हैं मेरे मलाई कोफ्ते। इसके अंदर की फिलिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से नज़र आ रही है। तो अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी कोफ्ते इसी तरह से सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हम सबसे पहले ये 4 आलू लेंगे। इन आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने ये 4 आलू लिए, इनको मैं मैश करूँगी। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है मैंने। अब ये पनीर लिया है मैंने, ये
150 ग्राम के करीब पनीर है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। इसमें से थोड़ा सा पनीर हम रहने देंगे, बस इतना सा पनीर रहने दिया। ये पनीर हम स्टफिंग में यूज करेंगे। अब इस पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें हाफ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन कोफ्तों की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो स्टफिंग के लिए जो पनीर को हमने ग्रेट करके रखा था वो ले लिया है मैंने, और इसमें ये मैंने काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखा है, वो डाल देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम हमारे कोफ्ते रेडी करेंगे। चाहे तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैं आज इसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ। आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो इसमें ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, नहीं तो आप इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाएगा। अब हम ये स्टफिंग लेंगे थोड़ी सी, इसमें इसको इस तरह से रखेंगे, इसको फिर हम इस तरह का शेप देंगे। ओवल शेप बना रही हूँ मैं आज। इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। आज हम इन कोफ्तों को सिर्फ 1 या 2 चम्मच तेल में तवे पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये इस तरह से मैंने ओवल शेप रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैं बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लूंगी। ये मैंने अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक आयरन तवा गरम करूंगी और उस पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने आयरन तवा गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे कोफ्ते डालेंगे। आयरन तवा यूज करने का ये रीजन है, मुझे लगता है जिस तरह से डोसे आयरन तवे पे क्रिस्पी बनते हैं उसी तरह से हमारे कोफ्ते भी इस पे अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ही कम ऑयल यूज होगा और हमारे कोफ्ते एकदम अच्छे से सिक भी जाएंगे। इसी तरह से हम इसको चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे कोफ्ते सब तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, बिल्कुल कम तेल में, बहुत ही कम तेल में, और एकदम अच्छे से बन चुके हैं। अब इसी तरह से हम हमारे सारे कोफ्ते एकदम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमने हमारे सारे कोफ्ते शैलो फ्राई कर लिए हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने लिए हैं ये 4 प्याज को बड़े बड़े पीसेज में कट कर रखा है। टमाटर है, ये 3 टमाटर हैं, इनको बड़े बड़े पीसेज में कट कर रखा है। 2 हरी मिर्ची है और 10 से 15 लहसुन की कलियां हैं, और ये 10 से 12 काजू लिए हैं मैंने। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे। आप चाहें तो इनको सेक के भी ग्रेवी बना सकते हैं। आप चाहें तो कढ़ाई में तेल डालकर इनको रोस्ट करके भी इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। आज मैं इस तरह की ग्रेवी बना रही हूँ, इससे भी हमारे मलाई कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब हम एक बार इन सबको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने ये टमाटर और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, तभी हमारी ग्रेवी एकदम अच्छे से बनेगी। ये एकदम ग्राइंड हो चुका है। अब हमने ये कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर दिया हमने। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। ऑयल डाला है मैंने ये। और अब हम इस सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 1 स्पून के करीब ये घी डाल रहे हैं। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब ये ऑयल गरम हो चुका है, ऑयल और घी। अब हम इसमें 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। 1 स्पून जीरा डालेंगे। इस जीरे को चटकने देंगे। अब ये जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें ये हमारा टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बना रखा है वो डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, स्वादानुसार नमक डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून सूखा धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून गरम मसाला। ये गरम मसाला घर का बना हुआ ही है।
ये डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि इसमें घी और तेल की तरी ऊपर तक नहीं आ जाती। आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से तरी आ चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और ये मलाई कोफ्ता है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। तो ये मैंने 1/2 कप मलाई ली है, इसमें से हम आधी अभी डाल देंगे और आधी गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। ये फ्रेश क्रीम की ही मलाई है, जो हमारे दूध में आती है, वही मलाई यूज कर रही हूं मैं। अब हम इसको एक बार और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। एक बार और ढक्कन लगा के रख देंगे। अब ये हमारी ग्रेवी अच्छे से हो चुकी है, इसमें अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और अब हम हमारे मलाई कोफ्ते सर्व करेंगे। अब हम पनीर कुलचा बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा लेंगे। तो मैंने इसमें इस कप से 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून के करीब मैंने शक्कर डाली है। अब मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, ये मैंने 1/4 स्पून डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही और 1 चम्मच तेल डालेंगे हम। अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसका गुनगुने पानी से आटा तैयार कर लेंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब ये हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने ये घी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसको एक बार मसल लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ आटा या सिर्फ मैदा लेकर भी कुलचे बना सकते हैं। अब हम इसका बेलन से इसको अच्छे से बेल के इसको पूरी एक मोटी सी रोटी बना लेंगे। अब हमने इसको बेल कर तैयार कर लिया। अब हम इस पे घी डालेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं और इस पे आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको हल्के से अच्छा सा रोल कर लेंगे। धीरे धीरे रोल करेंगे हम इसको और साइड से पैक करते जाएंगे। ये हमने रोल कर लिया और चारों तरफ से इसको अच्छे से पैक भी कर लिया। हमें प्रेस करके पैक करना है एकदम अच्छे से इस तरह से। अब हम इसके छोटे छोटे, जिस तरह से हम रोटी के पेड़े तैयार करते हैं उस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पोर्शन कट करने हैं। इस तरह से हम सारे पोर्शन कट कर लेंगे। ये हमने सारे कट कर लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड करते हुए उसके बॉल तैयार कर लेंगे, पेड़े तैयार कर लेंगे हम इसके रोटी बनाने के लिए। जिस साइज के हम चाहते हैं उसी तरह से हमें कट करने हैं। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके पेड़े तैयार करने हैं। तो ये हमारे पेड़े भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें वापस से इस कटोरे में रख लेंगे और इन्हें ढक्कन लगा के फिर से हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। अब स्टफिंग के लिए मैंने ये 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये मैंने 1 अनियन लिया है, फाइनली चॉप कर रखा है, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, ये भी मैंने फाइनली चॉप कर रखे हैं तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। अब हम इसमें ये चाट मसाला भी ऐड कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा 10 मिनट हो चुके हैं तो ये बॉल्स भी हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हम एक बॉल उठाएंगे, उसे बेलन से इस तरह से रोल करेंगे, उसे हल्का सा छोटा सा बेलेंगे और हम इसमें नीचे थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी लगा सकते हैं।
मैंने सिर्फ धनिया और पुदीने के पत्ते डाले हैं। अब इस तरह से हम इसको फैलाएंगे। अब हम इसमें बीच में स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से स्टफिंग डाल देंगे और इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरह से हम करेंगे, इसको फैलाएंगे और इस तरह से बेल के तैयार कर। अब हमने जिस तरफ में धनिया नहीं लगाया उसके अपोजिट साइड में हम 1 चम्मच पानी डालेंगे, उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ब्रश से भी फैला सकते। अब हमने जिस तरफ में पानी डाला है उसे तवे पर इस तरह से डालेंगे। तवे पर मैंने पहले से ही तवे को गर्म करके रखा है। अब जब इसमें इस तरह के बबल आ जाए तब हम इसको तवे को इस तरह से उठाएंगे, उसे सीधा गैस पे रखेंगे और हम रोटी को दूसरी साइड से भी सेक लेंगे तो हमारे कुलचे अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा कुलचा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इस पे बटर या घी आप जो चाहें वो लगा के सर्व करेंगे। तो हमारे यह मलाई कोफ्ते और पनीर कुलचा बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और कितने यमी लग रहे हैं ये, और हमारे पनीर कुलचे भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। माय नेम इज गुरलीन कौर। गुड इवनिंग टू ऑल। कुकिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा रिलैक्स कर देती है और खुश कर देती है। आई एम श्योर आप में से भी बहुतों को करती होगी। सो आज की जो डिश है उसमें हम एक बहुत ही प्यारा फ्यूजन करने वाले हैं। तो इटली में एक बहुत ही प्यारी डिश कुक होती है रिजोटो। राइस की डिश होती है रिजोटो और बहुत ही मजेदार इटालियन फ्लेवर्स में वो कुक होती है। और मैंने वहां से इटली से उठाया रिजोटो को और ले आया उसको इंडिया, बनाया उसको अपने देसी वर्जन में। क्या किया उसके साथ, अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं डालने जा रही हूँ 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो कुछ रिजोटो के ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ हमने उसको अपना देसी टच दिया है। तो आप इसको देसी रिजोटो भी बोल सकते हो। आफ्टर दैट आई विल ऐड 2 स्मॉल स्पून्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक। सो गार्लिक को हमने ज्यादा सौते नहीं करना है, बहुत लाइटली सौते करना है, क्योंकि आप सबको जैसे पता है इटालियन कुकिंग जो होती है, जो हमारी फ्रेंच कुकिंग होती है, वो बहुत माइल्ड कुकिंग होती है। तो उसमें ज्यादा हमें चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को कलर नहीं देना होता और रिजोटो में तो स्पेशली नहीं देना होता। देन विल ऐड ये चॉप अनियन है, 1 स्लाइस अनियन, 1 चॉप अनियन। सो अनियंस को इसमें सौते करेंगे और अगेन इसमें कलर ज़्यादा नहीं देंगे, जस्ट अनियंस को हम ट्रांसलूसेंट करेंगे। तो जैसे ही ये अनियंस थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए, मैं डाल रही हूँ इसमें स्टॉक वाटर। आप कोई भी स्टॉक वाटर यूज़ कर सकते हो, नॉनवेज स्टॉक यूज़ कर सकते हो। मैं आज यूज़ कर रही हूँ मशरूम स्टॉक, क्योंकि रिजोटो और मशरूम्स एक बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये जो स्टॉक है, जस्ट मैंने जो मशरूम्स की वो बेस होता है उसी को पानी में डाल के और कोरिएंडर के साथ उसका एक स्टॉक रेडी कर लिया। सो जैसे ही ये स्टॉक में बॉयल आ जाएगा, हम ऐड करेंगे अपने राइस। और ये राइस कौन से हैं? ये राइस हैं बेसिकली जो रिजोटो होता है उसमें यूज होते हैं, और बोरियो राइस जो ऑथेंटिक रिजोटो में, और बोरियो राइस हम यूज करते हैं। लेकिन हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हम देसी बना रहे हैं, तो मैंने यूज किए जो हम वो यूज नहीं करते वो खिचड़ी के लिए, टोटा चावल, मैंने वो यूज किए। तो ये हाफ डन राइस है। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन, वैसे हम नॉर्मल रिजोटो में थाइम डालते हैं, तो मैंने इसको अजवाइन फ्लेवर में इसको पार बॉयल कर लिया था। तो उसके बाद हमने इसको रिजोटो में डाला है। तो ये हाफ कुक्ड राइस है। जैसे जैसे ये राइस कुक होते जा रहे हैं तो मैं इसमें डालूंगी डाइस्ड मशरूम्स, और मशरूम्स और रिजोटो एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, और आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा कि क्योंकि हम स्टॉक कम ज़्यादा कर रहे हैं बार बार, अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी देख के हम स्टॉक बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्ट भी उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। सॉल्ट के बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर, चॉप कोरिएंडर,
मशरूम्स मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे इससे ज़्यादा मशरूम्स को सॉफ्ट नहीं करना। देन आई विल ऐड पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो जो पैकेट्स आते हैं ना घर में, मैंने वही डाल दिए जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं। वैसे आप इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हो। अब रिजोटो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ चुका है, तो मैं डाल रही हूँ हम सबका फेवरेट बटर। और बटर डालने में कंजूसी नहीं, जैसे ही बटर डालेंगे एक अलग ही शाइन इस रिजोटो में आ गई। और इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड चीज़। मिक्स करेंगे अच्छे से, इसको चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। जो इटालियन रिज़ोटो है वो सेमी थिक प्रिपरेशन होती है। जब हम इसको सर्व करते हैं तो ये सेमी थिक होता है, लेकिन हम इसको आज थोड़ा ज़्यादा थिक कर रहे हैं क्योंकि हम इसका फ्यूजन करने वाले हैं। ऑफ करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 स्पून ऑफ क्रीम। और मिक्स करेंगे क्रीम डाल के, क्रीमी शाइनी। वाह। आप इसको ठंडा होने दीजिए अच्छे से, और ठंडा होने के बाद ये और थिक होगा। तो जो हमें यूज करना है वो हम इसका एक थिक वर्जन यूज करेंगे, तो उससे हम अपनी आगे की डिश बनाएंगे। अब मैं लूंगी रेसिपी का नेम कि क्या फ्यूजन कर रहे थे। हम बनाने जा रहे हैं रिजोटो परांठा, इटालियन डिश देसी ट्विस्ट। सो रिजोटो रेडी है। मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ये थिक कंसिस्टेंसी जैसे हम परांठे की स्टफिंग के लिए यूज करते हैं, तो हम बनाएंगे अब परांठा। और परांठा जैसे नॉर्मल परांठे बनते हैं, बस वही मैंने आटा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। ये परांठा जैसे हम टॉर्टिलास भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं अपने घर में नॉर्मल मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसकी एक चपाती बना के मैंने यहाँ पे हाफ डन करने के लिए रख दी। तो तब तक मैं एक और बना देती हूँ। तो जस्ट मैं हल्का सा इसको पका रही हूँ, हाफ डन से भी थोड़ा कम ही रख रहे हैं। तो ये रेडी है मेरा हाफ डन पराठा, और मैं अब इसको निकाल तब तक हम एक और बना लेते हैं। तो ये हमारी 2 रोटी रेडी हैं। अब हम पराठा बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक डिप रेडी की है। इस डिप के लिए सेसमे सीड्स को मैंने रोस्ट किया नॉर्मल तवे पे, और सेसमे सीड्स को जब उसको उतारा थोड़ा सा ठंडा कर लिया, उसमें मैंने ऐड किया 2 टीस्पून हनी प्लस 1 टीस्पून वो जो कश्मीरी चिली पाउडर कलर वाला कलर होता है ना, जिसमें स्पाइसीनेस कम होती है, मेन जो हम देगी मिर्च यूज़ करते हैं, तो वो मैंने इसमें डाला। इसको मिक्स किया और कर्ड के साथ मैंने इसको ब्लेंड किया। तो ये मेरे पास डिप रेडी हो गई। इस पे हम स्प्रेड करेंगे बस थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैजिक और मास्टर इंग्रेडिएंट, ये है हमारा इटालियन रिज़ोटो। इसकी एक अच्छी फिलिंग देंगे हम। अब हम इसको टॉप करेंगे और भी चीज से। और अब ये परांठा जाएगा इसके ऊपर। तो स्टार्ट करने के लिए अब मैं इसमें डालूंगी बटर। और परांठा है तो बटर में कंजूसी नहीं होगी। तो मैंने डाला है इसके नीचे बटर, इसको टेस्टी और यमी करने के लिए, और बीच में डाला है हमने चीज जो इसको बाइंड करेगा।
कितना सुंदर कलर आया है एक साइड पे, और नीचे से भी हम इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प कर लेंगे। इडली की स्टफिंग और हमारा परांठा। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये परांठा हमने अलग कर लिया, काट लिया। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये रेडी है मेरा रिजोटो परांठा। एक बार इसको ट्राई कीजिए। सो मैंने इसको सर्व किया है वो सेसमे चिली डिप और कर्ड के साथ, आपके ब्रेकफास्ट के लिए एक और यूनिक आइटम। थैंक यू सो मच। Hi all, I am Divya from Bangalore. Thanks to Game of Recipes, I am going to participate the Game of Recipes contest. Today I am going to make main course broccoli fried rice and mango sabudana kheer. Both are wonderful, delightful recipes, and this is the perfect main course recipes. Let's get started. Firstly, heat a pan, add 1 teaspoon of butter. Melt the butter. Once the butter well melted, and then add 1 teaspoon of chopped garlic and ginger. Fry well until the rawness will be left. Then add 1 teaspoon of chili slices. Fry well. And then add 1 cup carrot slices. And then add 1 cup capsicum slices. Keep continuing to fry. And then add 1 bowl of parboiled broccoli florets. Mix well. Then add gobi florets. Gobi is optional. If you are interested, you can add gobi. Otherwise, you can skip. This is the perfect healthy recipe. Easily can make the best main course recipe. Close the lid until it becomes veggies softened. Once it's softened, then add 1 bowl of cooked rice. Add 1 teaspoon of soya sauce. Mix well. The flavors and veggies and rice are well mixed, and then add 1 teaspoon of salt. One teaspoon of pepper. Mix up gently. Here our broccoli fried rice is ready to serve in a plate along with raita. Best main course recipe, at the same time very healthy and tasty and innovative recipe. Please try, definitely you will love it. And then for the next recipe, add 1 teaspoon of ghee in a kadai. Add chopped dry fruit pieces. Fry well.
fried, take out into a cup. And then add watermelon seeds and pumpkin seeds. Fry well, take it out. With the same kadai, add half cup of sage, fry well until the same becomes roasted color. Here our sage is well roasted. And then add 1 bowl boiled milk. Mix well. Meanwhile, serve the sabudana. Keep aside the sabudana to soak. Perfectly soaked, drain the water, add the sabudana into milk. Cook in a low flame. Well, once the sabudana it becomes a transparent and same is also cooked, and then add 1 bowl of sugar, mix well, and then add 1 teaspoon of cardamom powder. Then add fried dry fruit pieces. Here our tea, keep aside for the chill. Now it's chilled. Add mango pulp into the ghee. Mix well. Now I am going to serve in a bowl. Garnish with mango pieces and dry fruit pieces. Here our main course, Game of Recipes, broccoli fried rice and mango kheer from my side. Thanks for watching. हेलो, आई एम ज्योति गुलाटी। मैं अम्बाला से हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ और मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। और आज आपके सामने मैं दम आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये हम आधा किलो आलू लेंगे जो कि हमें मेन इसकी चाहिए, और ये 150 ग्राम मावा, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और काजू कटे हुए, और 3 प्याज कटे हुए, 4 टमाटर। अब हम ये प्याज, ये अदरक, ये लहसुन, हरी मिर्चें और इसी में टमाटर काट के पीस लेंगे, ग्राइंड कर। जब तक हम इसको ग्राइंड करते हैं तब तक हम पर घी गरम होने के लग देंगे। अब ये घी गरम हो गया हमारा, और अब इसके लिए हम ये आलू डीप फ्राई कर देंगे।
आलूओं को हम अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। अब ये एक साइड कुकर रखेंगे और कुकर में इसको तेल गर्म होने देंगे और इधर ये आलू हमारे डीप फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। ये हमारा घी भी गर्म हो गया, इसके अंदर हम ये जीरा डालेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ और थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। देगी मिर्च पहले डाल देंगे जिससे कलर आएगा इसका। ऊपर से हम ये पिसा हुआ प्यूरी डालेंगे। अब इस ग्रेवी को हम बनने देंगे अच्छी तरह से जब तक ये घी नहीं छोड़ जाती। तो हम ये देखेंगे कि मसाला हमारा रेडी हो गया। 20-25 मिनट पकने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक या अपने टेस्ट के अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसकी पहले हरी मिर्च भी डालनी है, इसलिए आपने लाल मिर्चें कम डालनी है जिससे तेज ना हो। अब ये मावा जो है हमारा, कि हम इस बीच में डाल देंगे। इसको कम से कम 20-25 मिनट तक ऐसे ही मसाले को बनने दें मावे के साथ। काजू भी हम इसमें डाल दें। अब इसको 15 मिनट के लिए ढक करके रखें। अब हम ये ग्रेवी देखेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया। अब हमारे जो आलू हैं इसको हम फोक से कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे इसके अंदर मसाला चला जाए। सारे आलूओं को ऐसे ही कर लेंगे। अभी हम ये आलू इसके बीच में डालेंगे। थोड़ी सी हमारे पास मलाई है, आप क्रीम ले सकते हैं। मलाई अगर घर में है तो मलाई ले सकते हैं।
आधा कप हम इसमें पानी डालें। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको एक विसल देंगे। एक विसल में हमारी तैयार। कुकर में एक विसल आ गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे अपने आप। उसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए, ये हमारे दम आलू तैयार है। ये हमारे आलू गल गए हैं अच्छे से। इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे ऊपर से हमने क्रीम डाल दिया और धनिया डाल दिया। आलू तैयार है। Welcome back, my lovely viewers. I personally like to congratulate every home chef on Game of Recipes for their hard work and efforts. We are still accepting last few entries for season 3 of Game of Recipes again, leading to the Grandmaster Home Chef episode where we will pick our winner and the runner-up and both will stand a chance to win a prize. The episode dates and prizes are always available here during the episode and also on all our social media channels. Our next season date will be announced very soon. Once again, I thank my viewers for directing many of your connections for my advice on making restaurant or food businesses successful. You're always welcome to connect with me for collaborations and business support through Game of Recipes. Please encourage our wonderful home chef of this episode by watching, voting, commenting and then sharing our episodes with your friends and family. Maybe they too might want to take part in the Game of Recipes. Vote and also let us know in the comments about what make the home chef recipe and video special. And lastly, click the subscribe button and also the bell icon to receive timely updates and motivate our home chefs. I will announce the third semi-finalist of Master Home Chef competition in the Game of Recipes. Vote and also let us know in the comments about what make the home chef recipe and video special. And lastly, click the subscribe button and also the bell icon to receive timely updates and motivate our home chefs. I will announce the third semi-finalist of Master Home Chef competition. Thank all my home chefs who have participated. Don't wait to participate in our contest. It's easy and all the details are available on our website www.gameofrecipes.com. See you next week with 4 new awesome home chefs.